wanted to become an independent girl. Modeling is something I'm really passionate about. Entrepreneurship तो मुझसे कोई ले नहीं जा सकता. You have to be focused because challenges तो आएंगे. It's a lonely path. आपको ही चलना है, आपको ही पुश करना है, आपको ही खुद को मोटिवेट करना है. मुझे challenges लेना बहुत पसंद है. मेंटर भी वेट करेगा फर्स्ट स्टार्टअप वेट करेगा फॉर मेंटर, बट उनका जो इंटरफेस है उसके बीच हम होते हैं. तो हमारा टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट एज वेल. अगर आप अच्छे पॉजिटिव कोट्स पढ़ लो, आप पॉजिटिव वीडियोस देख लो, but in case if you are not self motivated, nothing is going to work. So make sure you're self motivated. Believe and do what you want to do, and I'm sure you will achieve. I am your host Gaurav Garg, and we welcome all our viewers to our show Amazing Mentor. Today with us is Rachna Tiwari. She is a model, an entrepreneur. She started her modeling career when she was in 12. She has been a startup professional since 9 years. Rachna Tiwari is a CEO entrepreneurship at Xavier School of Management. She is running a full-time program on entrepreneurship, PGDM. She manages the PGDM IEV, the incubator, and coordinates all ecosystem relationships. Earlier, she was part of the founding team at ABVIL, the Jharkhand State Incubator. Rachna has been working in the area of entrepreneurship, development, and startup program strategy. She has also worked as an expert on startup project with Government of Jharkhand, IIM Ahmedabad, and consulting firms like EY. She also coordinates the submission of DIPP that lead to Jharkhand being ranked as aspiring leader among states. She is currently a mentor at the Institute Innovation Council at BIT Maithra. It's a pleasure to welcome Rachna Tiwari to our show Amazing Mentor. Welcome, Rachna. Thank you so much, Gaurav. Tell us, how was you as a student in your early days? All I can say is yes, I was a good student. So any notorious part of your student life? Not really, nothing special, but all I can tell you, I studied in Ranchi. I did my 10th from KV Hino CISF, and then I did my 12th from KV I did my 12th from KV CRPF, both in Ranchi. And my 8th standard, I was felicitated as the best student of school. So this is all I could recall. But yeah, but yes, I was a good student. So what about your childhood memory? Any funny or notorious childhood memory? I was sincere, तो ऐसा कुछ funny तो नहीं है. मतलब लोग believe नहीं करते हैं a model can be a good student or something on those lines. But yes, I was a good student, sincere too, and I was awarded as best student in the standard 8. But उसके अलावा ऐसा कोई special memory तो नहीं है मेरे पास. I have to recall that. So good student also have notorious memory. It can't be believed that okay, you are good at teaching and you don't have any notorious memory. Well, Gaurav, I really don't remember. I would be very honest to you. So was there any teacher who particularly have a strong influence on your life? Oh yes, 100%. So I remember, so मेरा accounts honors है, and I do remember there was a teacher, and one, he was very strict, and second, I don't know मेरे साथ क्या problem था. He never used to like me. But above all, I still remember कि उनका dislike करना मुझे कहीं ना कहीं मुझे काफी influence किया. Every now and then I used to think कि what is wrong, what is there जो ऐसा dislike है. And I started working on myself, and that very moment I realized, boss, there is something wrong with me, that he's not liking me. And believe me when I say this, Gaurav, he used to dislike me like anything. Like he was very strict, and मतलब मुझे हर क्लास में punishment मिलती थी. But yes, I can say that he has influenced me, and उनका एक role है मेरे life में. So tell us about your educational background in schooling and higher education. I did my 10th from KV Hino CISF, and then my 12th from KV CRPF. I did my graduation from Marwari College, which is in my hometown only, Ranchi. And I got placed from my graduation placement. And उसके बाद से I always wanted to become an independent girl. Like मेरे लिए वैसा था कि नहीं, मुझे अभी से independent होना है. मेरा graduation, I was in fact waiting कि मेरा graduation कब खत्म होता है, so that I can become an independent person. My parents were after me कि no, go for further studies, this, that. And so as a child, what was your dream profession?
सिंस माई चाइल्डहुड आई वॉन्टेड टू स्टैंड आउट। ये तो मतलब था कि मुझे कुछ अलग करना है, बट मॉडलिंग नहीं सोचा था। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन एविएशन। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स आज भी बोलते हैं कि एविएशन तो ज्वाइन नहीं किया, बाकी सब ज्वाइन कर लिया। सो यस, आई वॉन्टेड टू ज्वाइन एविएशन इंडस्ट्री, जो कि कभी नहीं हुआ। ये एक मेरा ड्रीम था अगर चाइल्डहुड की बात करें। एंड सेकेंड है कि जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टैंड आउट। मुझे भीड़ से अलग दिखना, बनना, शुरू से वो कीड़ा मेरे अंदर है कि बॉस यू स्टैंड आउट। अगर आप खुद को अलग नहीं करते हैं, भीड़ से कुछ अलग नहीं करते हैं, तो लोग आपको पहचानेंगे नहीं। और मैं हमेशा चाहती थी कि लोग मुझे पहचाने मेरे काम से, मेरे प्रोफेशन से। So what about your hobbies and interests? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। मेरा हॉबी ऑलमोस्ट एवरी नाउ एंड देन चेंज होता है। मेरे लिए हॉबी, पैशन, सो यस, इफ यू टॉक अबाउट माय पैशन, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट मॉडलिंग। बट हॉबी, मैं बचपन में थोड़ा डांस वांस करती थी। मैंने क्लासेस ज्वाइन किए थे एंड आई वाज अ गुड डांसर। आई वोंट से कि मैंने अच्छा नहीं किया था। सो या, हॉबी। बट at present, I like spending time. I like reading books. I like spending time when I say alone. मतलब मुझे अकेले खुद के साथ रहना, सेल्फ टॉक जो कहते हैं, खुद से बातें करना, खुद को समझना, खुद को रीड करना, वो बहुत पसंद है। बिकॉज वो एक मोमेंट होता है, आप अपने आप को एनालाइज करते हो, ऑब्जर्व करते हो चीज़ों, और आप थोड़ा एक मोमेंट लेते हो। सो आई ऑलवेज बिलीव कि टेक अ पॉज, अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अगर थोड़ा डीमोटिवेटेड हो, खुद को मोटिवेट करो, खुद को पुश करो। एंड एवरी डे यू शुड स्पेंड एटलीस्ट 15 to 20 minutes खुद के लिए। सो आप ये कह सकते हैं मेरा ये हॉबी है। So any particular person who has influenced you, or who is your role model as far as modeling is concerned? My sister, 100%. She is a fashion icon. मतलब she is my inspiration. And my sister is in media, but she's a hardcore entrepreneur. When I say she's a businesswoman, तो जो मेरा वेंचर है वो मैंने अपनी सिस्टर के साथ ही डे वन से किया है। सो शी समबडी जो मुझे हमेशा इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, पुश मुझे हमेशा मेरी सिस्टर से मिला। तो शी इज माई इंस्पिरेशन ऑलवेज टिल नाउ। शी वॉज माई इंस्पिरेशन, शी इज माई इंस्पिरेशन। एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर। सो या, लाइक माई फैमिली, माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। एंड सिस्टर स्पेशली, शी इज माई इंस्पिरेशन when it comes to modeling especially. So where did you started your professional journey from? 2015, I started my career professionally. I joined HR department and I worked there for 2 years. Torrent World है, वहाँ पे मैंने काम किया। And उसके बाद से I got a chance to work with IIM Ahmedabad entrepreneurship project. I worked with IIM Ahmedabad, and then I got a chance to work with Government of Jharkhand for their startup project. Basically, the objective was to create an ecosystem in the state of Jharkhand so that यहाँ पे जितने भी budding entrepreneurs हैं और startups हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे उनको रिसोर्सेज मिल रहा है, जहाँ पे वो आ सके, वो इंक्यूबेट हो सके। तो हम लोगों ने एक इंक्यूबेशन सेंटर भी सेटअप किया जहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया। हमारी पॉलिसी थी, देयर वाज अ स्क्रीनिंग प्रोसेस, पैरामीटर्स वर देयर, जिससे स्टार्टअप सिलेक्शन करते थे। सो बेसिकली हमारे एक एससीबी पैनल था जिसके थ्रू झारखंड के स्टार्टअप्स या कहीं के भी, इट्स नॉट नेसेसरीली झारखंड, बट यस हम प्रेफर करते थे वो झारखंड के हो, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इकोसिस्टम इन द स्टेट ऑफ झारखंड। सो वी वुड प्रेफर कि वो झारखंड स्टार्टअप हो। हमारे पैरामीटर्स होते थे, एससीबी स्टैंड्स फॉर स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड, जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस के चांसलर और डायरेक्टर होते थे, जहाँ पे हम स्टार्टअप स्क्रीनिंग करते थे। एंड वंस दे आर shortlisted by the government officials or the institute जो और the stakeholders, उसके बाद जो भी हमारे startup policy के benefits थे, they can avail those benefits. So that's how we started and we created the ecosystem. Not just ecosystem, if you go through the website of Startup India, हम लोगों ने उनके साथ एक startup यात्रा किया। हम लोगों ने बहुत closely Startup India के साथ काम किया during my duration with government of Jharkhand, and हम लोगों ने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया। वी कोलैबोरेटेड विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पैन झारखंड। बेसिकली द ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट इकोसिस्टम देयर एंड टू सेट अप एन इंक्यूबेशन सेंटर, और वो इंक्यूबेशन सेटअप करने में जो भी सपोर्ट चाहिए वो गवर्नमेंट देगी। तो हम हर तरीके से वो सपोर्ट देना चाहते थे स्टेट को, एंड वी डिड एक्चुअली। हम लोगों ने बड़े इवेंट्स किए, वी डिड हैकाथॉन, वी डिड आईडी कॉन्क्लेव। हमारा इफ यू सी एवरी मंथ नॉट लेस देन 2-3 इवेंट्स होते ही होते थे, सो दैट जो स्टार्टअप्स हैं उनको उनकी नेटवर्किंग हो सके, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, डिफरेंट स्पीकर्स के साथ, डिफरेंट
इकोसिस्टम एक्सपर्ट्स के साथ एक नेटवर्किंग कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट वी डिड. एंड ये अभी सुनने में बहुत आसान लगता है, बट लेट मी टेल यू गौरव, वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, जीरो. Like when I joined, nothing was there. बस एक प्रोजेक्ट साइन हुई थी एंड हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे लाया गया था कि यू हैव टू क्रिएट एन इकोसिस्टम. एंड देन राइट फ्रॉम पॉलिसी बनाना, स्टार्टअप्स इंक्यूबेट करना, इंक्यूबेशन सेंटर सेट करना, वेरियस स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड करना, इंस्टीट्यूशंस में जाकर पिच करना, उनको बोलना कि आप इवेंट्स करवाओ, कॉम्पिटिशन्स करवाओ, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता चले देयर इज अ प्लेटफॉर्म जिसका नाम है AVVIL, सो दैट वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, वो अपने स्टार्टअप को रजिस्टर कर सकते हैं, दे कैन अवेल द बेनिफिट्स, दे कैन गेट इंक्यूबेटेड, इनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिल सकता है. इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत सारे पार्टनर्स को ऑनबोर्ड किया, जैसे नॉलेज शेयरिंग पार्टनर, कुछ हमारे जो क्रेडिट होल्ड करते हैं लाइक Zoho. राइट फ्रॉम स्क्रैच हमने बहुत चीजें बिल्ड की. एंड आई फील फॉर्चुनेट दैट मैं उस टीम का पार्ट थी, बिकॉज आज अगर हम देखें तो फ्रॉम 0 to 400+ स्टार्टअप्स आज रजिस्टर्ड हैं हमारे वेबसाइट पे. सो वी फील फॉर्चुनेट कि हम लोगों ने ये किया. माई नेक्स्ट जर्नी, आई जॉइंड खादी. एंड खादी में आई टेल यू माई एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप कीड़ा अगेन. वी ऑल नो खादी इज ऑफलाइन. अगर मुझे खादी का कोई सामान चाहिए, मुझे स्टोर जाना है या फिर खादी का जो एक मेला होता है वहां पे जाना और हम खरीदते हैं, राइट? सो खादी इज नॉट ऑनलाइन. So the proposal was to make Khadi online, official e-com platform of Khadi India. So 1st January 2021, Khadi was launched as e-com platform. e-Khadi India के नाम से सेक्रेटरी MSMA ने उसको ऑफिशियली लॉन्च किया एंड हम सब वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे. सो हियर एज वेल, राइट फ्रॉम ऑनबोर्डिंग पार्टनर्स, व्हेन आई से ऑनबोर्डिंग पार्टनर्स, हियर खादी यूनिट्स कोई भी जो नॉर्मल बिजनेसमैन है वो नहीं कहलाते हैं. दोज हु आर सर्टिफाइड, जिनका रजिस्ट्रेशन है विद PMHGP और स्फूर्ति और REGP KVIC, वो ही कहलाते हैं खादी यूनिट्स. सो राइट फ्रॉम खादी यूनिट्स को अप्रोच करना, वेबसाइट के बैकएंड पे काम करना, एंड देन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट, फ्लैशिंग द प्रोडक्ट्स के कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना, एंड देन आइडेंटिफाई करना कि कौन सा प्रोडक्ट फ्लैश होगा, क्या राइटअप होना चाहिए, एक टीम क्रिएट करना. एंड देन इफ यू सी नाउ खादी इज ऑनलाइन. आई एम श्योर नॉट एवरीबडी नोज, बट वी आर ट्राइंग हार्ड. हम बोलते भी हैं व्हाई नॉट खादी, अगर हम बाहर की चीजें ले सकते हैं तो व्हाई नॉट खादी. वी हैव होम एसेंशियल्स, वी हैव वेलनेस आइटम्स, वी हैव होम डेकोर आइटम्स. वी ऑल नो खादी कुर्ता, खादी साड़ी. बट या, सो दिस इज व्हाट वी डिड. आई वर्क विद खादी इंडिया फॉर 1 साल से थोड़ा ज्यादा काम किया. एंड यहाँ पे अगेन वो स्टार्टअप कीड़ा वॉज, वी क्रिएटेड खादी एज एन ऑफिशियल e-com platform. So now Khadi is online. After Khadi, I joined XLRI. I landed up here and then we started discussing what can be done, and we launched IV, Innovation, Entrepreneurship and Venture Creation. So basically I'm responsible for the overall program, the incubator, and I coordinate all ecosystem relationships right from zero. And at present we have 30 partners including Razorpay, TIE, Microsoft, Zoho. I wanted to tell you one thing, Gaurav. अगर ये जो ecosystem partners मैंने यहाँ पे भी ऑनबोर्ड किया, सो थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, बिकॉज ये सारे रिलेशनशिप्स मैंने वहां से ही, वो नेटवर्किंग, बिकॉज जब आप इकोसिस्टम में आते हैं एंड यू रियली वर्क हार्ड, तो आपके कनेक्शंस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं. आप जब एक्चुअली स्टेक होल्डर्स के पास जाते हैं, यू पिच एंड देन यू ट्राई टू गेट देम ऑनबोर्डेड, तो वहां से ये सारे मेरे कनेक्शंस मैंने उनको फिर से बिल्ड किया XLRI में. एंड एट प्रेजेंट वी हैव मोर देन 30 पार्टनर्स ऑनबोर्डेड, एंड दिस इज द फर्स्ट बैच वी आर रनिंग. वी लॉन्च द प्रोग्राम इन 2022 and this year July 6th we launched the second batch. We have 44 students in the batch. So yeah, this is my overall journey when it comes to professional. So how difficult and easy was it to get your first project as a model? It was difficult. बाहर से वो ग्लैमर दिखता है, but believe me, it is very difficult. हम भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं. It's not that easy to get assignments, get projects, get featured. It is not at all easy, Gaurav. And बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है. वो कनेक्शंस बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज फैशन इंडस्ट्री ऐसी जगह है ना जहाँ पे हर मोमेंट
एवरी नाउ एंड देन एक फेस रिप्लेस होता है, राइट? वो चाहते हैं कि मुझे फ्रेश चेहरा मिले, मेरे ब्रांड को कोई और रिप्रेजेंट करे। सो उसमें कंसिस्टेंट होना, उसमें 13 years 12 years रहना इज लाइक नेक्स्ट लेवल। मतलब जो मैं बिलीव करती हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, लाइक इवन नाउ आई एम डूइंग। सो यस, इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज आई रिमेम्बर ओनिडा के लिए कुछ 10-15 प्रोफाइल्स थे, ठीक है? एंड मैंने उस वक्त सोचा भी नहीं था, बिकॉज आई टोल्ड यू आई वांटेड टू जॉइन एविएशन इंडस्ट्री। तो मेरा ऐसा कोई ड्रीम भी नहीं था। मेरी सिस्टर ने मेरा प्रोफाइल शेयर किया एंड इवनिंग आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई सिस्टर दैट यू आर सेलेक्टेड। तो आई कुड नॉट बिलीव बिकॉज आप इंटरमीडिएट में हो और ओनिडा इट्स अ बिग ब्रांड एंड देन आपको उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो या आई कुड नॉट बिलीव। बट उसके बाद क्योंकि एक पैशन आ गया एंड मुझे बहुत बहुत डिफरेंट फील हुआ, बिकॉज आई टोल्ड यू कि ऐसा कुछ सोचा नहीं था। बट जैसे मुझे ओनिडा मिला तो आई फेल्ट वेरी डिफरेंट। आई फेल्ट कि आई कैन बी अ डिफरेंट पर्सन, लेट्स गिव इट अ ट्राई, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। एंड उसके बाद से या आई ट्राइड, मैंने अपना पोर्टफोलियो बनवाया एंड मैंने अपने प्रोफेशनल क्लिक्स करवाए एंड देन आई स्टार्टेड लाइक सेंडिंग अक्रॉस डिफरेंट जो राइट प्लेटफॉर्म है या फिर जो राइट कंसर्न पर्सन है उनको मैंने भेजना शुरू किया। इट वॉज नॉट दैट ईजी बिकॉज एक मिल गया तो जरूरी नहीं है कि बैक टू बैक आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिलते हैं। आपको मिलेंगे भी तो जरूरी नहीं है कि आपको ब्रांड्स ही मिलेंगे या फिर ऐसा कोई काम मिलेगा या प्रोजेक्ट मिलेगा जो नोन है या फिर लोग उससे आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो या इट वॉज टफ गौरव एंड बट वो कहते हैं ना कि हर दिन 15 मिनट खुद के साथ स्पेंड करो और खुद को पुश करो, नो मैटर व्हाट, लेट्स फाइट अगेन। सो या आई डिड दैट। तो मॉडलिंग बीच में एचआर करने की क्या सूझी आपको? बीच में एचआर वाला जो 2 साल का ट्रैक था वो किस लिए आया? No, it's not बीच में। In fact, I started my career with HR department. बीच में स्टार्टअप आया, right? मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई and I started my career with HR department. और उसके साथ मैं अन्नामला यूनिवर्सिटी के साथ मेरी MBA भी मैं परस्यू कर रही थी HR डिपार्टमेंट में ही। तो मेरा वो था कि प्रोफेशनली मैं HR डिपार्टमेंट को ही ज्वाइन करना चाहती हूँ बिकॉज टू सम एक्सटेंट मेरा एक फीलिंग था कि मैं इस डिपार्टमेंट में अच्छा कर सकती हूँ। सो I started my career in HR department. Startup तो it came उसमें मैंने जंप लिया because I told you that the startup कीड़ा was there. मैं ग्रेजुएशन डेज में मैंने अपना वेंचर लॉन्च किया था with my sister. तो कहीं ना कहीं जब वो आया मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, so I felt कि oh yeah, I know this world. Anyway मैं अपना वेंचर भी लॉन्च की हूँ. I am quite familiar and I would love to explore. I would love to see ये कितना दूर मुझे ले जाता है. So that's what I did. So now, particularly if you see, there are 2 main career options which you are pursuing, which is modeling and startup work. Yes. Somebody say let's choose anyone, what would be that? No, so गौरव यहाँ पे शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी because modeling is something I'm really passionate about and entrepreneurship is something, yes, there was a कीड़ा during my graduation days. I launched my venture. तो कहीं ना कहीं I always wanted to become कि मैं एक स्टार्टअप प्रोफेशनल बनूं। तो वो दोनों चीजें मेरे लिए मेरे दिल के बहुत करीब है। सो ये चूज करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। अगर ये मुझे चूज करना होता तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये 13 years से मैं मॉडलिंग नहीं करती बिकॉज यू नो इवन एट प्रेजेंट इफ आई टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप और मॉडलिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज 2 प्रोफेशन एट एक टाइम पे। तो अभी कभी क्या होता है कि मेरे बहुत सारे शूट्स लाइंड अप होते हैं, मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ, राइट? मुझे ढूंढना पड़ता है कि कब वीकेंड आएगा या फिर कब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगी। मैं फेस्टिवल्स में जाकर अपने शूट और ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट करती हूँ। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट बट येस आई वांट टू परस्यू बोथ। आई कैन नॉट चूज वन बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस फैशन इंडस्ट्री एंड स्पेशली मॉडलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप तो मुझसे कोई ले नहीं जा सकता। सो या आई कांट पिक वन। So what are the up and downs and challenges of startup and modeling as a career? एज एन एंटरप्रेन्योर और अगर आप अपना कोई वेंचर लॉन्च करते हैं एंड वो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि इट्स डूइंग रियली गुड, ठीक है? कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि ना कस्टमर्स मिल रहे हैं, ना मोटिवेशन है खुद में, ना कुछ चल रहा है, ना कोई प्रोग्रेस है, ना बहुत डिमोटिवेट होते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि क्या करें। बिकॉज आई डू बिलीव दिस एंड आई स्ट्रांगली बिलीव एंटरप्रेन्योरशिप इज अ लोनली पाथ। उस रास्ते आपको ही चलना है, आपको खुद को पुश करना है एंड हडल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट ये वो फोकस बहुत जरूरी है गौरव। एंड ओवर द टाइम मैंने यही रियलाइज किया है कि फोकस, अगर आप फोकस्ड हैं कि आपको ये करना है, जैसे अगर मैं अपनी वेंचर की बात करूं एंड स्पेशली मैं स्टार्टअप हर्डल्स की बात करूं मेरे वेंचर में,
तो मैंने अभी तक 3 बिजनेस मॉडल चेंज कर लिया है। लाइक आई स्टार्टेड विद समथिंग डिफरेंट, उसी बिजनेस मॉडल को मैंने फिर से चेंज किया बिकॉज आई रियलाइज कि इट्स नॉट वर्किंग। एंड देन थर्ड अगेन एट प्रेजेंट जो मेरा बिजनेस मॉडल है, इट्स अ डिफरेंट बिजनेस मॉडल ऑल टुगेदर। बट येस, वो सम एक्सटेंट फैशन से कनेक्टेड है, बट हाँ, यू हैव टू बी फोकस्ड बिकॉज चैलेंजेस तो आएंगे। इट्स अ लोनली पाथ, आपको ही चलना है, आपको ही पुश करना है, आपको ही खुद को मोटिवेट करना है। सो बहुत चैलेंजेस आते हैं, यू फील डीमोटिवेटेड। अगर आप अपने वेंचर पे काम कर रहे हो, आपको लगेगा कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं, यू नो थिंग इज हैपनिंग, बहुत स्पेंड कर दिया, कुछ नहीं हो रहा है। बट अगेन बॉस, व्हेन आई से फोकस, तो आपको समझ में आएगा ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। सो व्हेन आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू डू दिस, तो आप उसको करते रहोगे। जैसे मैंने अपना 3 बिजनेस मॉडल चेंज किया, रीजन आई फेल्ट कि फर्स्ट वाला इतना काम नहीं कर रहा है, देन सेकंड अगेन ओ इट्स नॉट वर्किंग, चेंज द बिजनेस मॉडल। सो आपको रास्ते चुनने होंगे कि इट्स नॉट कि गिव अप कर दो, जो कि मैंने मोस्टली देखा है, मैंने खुद के फ्रेंड्स को देखा है गिव अप करते हुए, विच आई फेल्ट कि अगर, एंड वहां पे जो लैक करता है वो फोकस। तो मतलब आप फोकस्ड नहीं हो। अगर आप सच में फोकस्ड हो, यू नो दिस इज व्हाट यू वांट, यू नो कि तुम्हें ये यहाँ तक पहुंचना है, ये तुम्हारी मंजिल है, तो आप वो करेंगे। हडल्स आएंगे, बहुत आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। और मैंने एक एग्जांपल भी दिया कि मैंने 4 साल में 3 बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया खुद के वेंचर में। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितने चैलेंजेस फेस किए होंगे, तभी मैंने वो चेंज किया। भले वो इन्वेस्टर्स हो, भले वो कस्टमर्स हो, भले वो कस्टमर्स का रिएक्शन हो। मतलब फैशन इंडस्ट्री का अगर कोई स्टार्टअप है तो कस्टमर रिएक्शन इतना मिलता है, आई कांट टेल यू, मैंने तो बहुत झेला है। सो इस तरह के चैलेंजेस बहुत आते हैं, एंड कस्टमर तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसको नजर में रखते हुए मैंने खुद का बिजनेस मॉडल चेंज किया एक ही वेंचर में। ये स्टार्टअप हर्डल जो था, जो मैंने फेस किया पर्सनली। कमिंग टू मॉडलिंग एंड फैशन इंडस्ट्री, तो जैसे मैंने बोला कि स्टार्ट बहुत अच्छा किया, ओनिडा किया, बट उसके बाद जब एक क्रीड एक डेवलप होता है कि ओके लेट्स डू दिस इज समथिंग ग्लैमर है, मेरा सिलेक्शन हो गया, एक वो फील तो आया था कि लेट्स डू दिस एंड अब इसको छोड़ना नहीं है, ये तो मैंने डिसाइड कर लिया था। एंड आई डिड टेल यू दैट आई ऑलवेज वांटेड टू स्टैंड आउट सिंस माय चाइल्डहुड। मुझे अलग बनना है, मुझे अपने नाम से, मेरे नाम से लोग मुझे पहचाने, और थैंकफुली वो आज हुआ है आफ्टर ओनिडा। एंड मुझे याद है कि आई स्टार्टेड, मैंने इधर उधर फोटोज शेयर किया, मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को रीच आउट किया, बट आई फेल्ट कि इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक मिल गया तो मुझे तुरंत से दूसरा भी मिल जाए। तो आई थिंक आई रिमेम्बर फॉर कपल ऑफ ईयर्स ऐसा मुझे कुछ स्पेशल नहीं मिला था, एंड जिसकी वजह से मैं डिमोटिवेट भी हो रही थी। बट फिर मैंने खुद पे टाइम दिया, खुद को मैंने फिर से रेडी किया। आई फेल्ट कि एक नीड है, खुद को पहले पॉलिश करो। शायद मैं इतनी पॉलिश नहीं थी फॉर फैशन इंडस्ट्री, क्योंकि वो मैंने रैंडम अपने फोटो शेयर किया था और मैं शॉर्टलिस्ट हो गई थी और मैंने कर लिया। चाहे वो स्टार्टअप वर्ल्ड हो गौरव या मॉडलिंग वर्ल्ड हो, आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको खुद को पॉलिश करना बहुत जरूरी होता है, आपको खुद को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। राइट नेटवर्क, राइट प्लेटफॉर्म, राइट मेंटर्स, जो कंसर्न पर्सन है उनसे मिलना, उनसे बातें करना, खुद को तैयार करना, खुद को पॉलिश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जरूरी नहीं है कि आज की डेट में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वी हैव इंस्टाग्राम, वी हैव हमारे कितने सारे, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री में देखो या स्टार्टअप वर्ल्ड में देखो, कितने सारे नॉलेज शेयरिंग। आपका प्लेटफॉर्म देख लो, आपका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप नॉलेज शेयर कर रहे हो। इफ आई गो बैक एंड सी 2014, 13 और 15, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था, एंड यू विल अग्री राइट। तो उस वक्त क्या है ना कि ना वो प्लेटफॉर्म्स हैं, ना वो रिसोर्सेज हैं, आपको खुद से मेहनत करनी है। तो एट प्रेजेंट और देन की अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो अभी के जो मॉडल्स हैं या जो बनना चाहते हैं या जो स्टार्टअप्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म्स है, रिसोर्सेज है, कंसर्न पर्सन है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जैसे कि मैंने मेंशन किया आपका है राइट। बट देन एज इन 2014-15 इट वाज नॉट देयर राइट। इवन थे प्लेटफॉर्म्स बट इतने ज्यादा नहीं थे। आपको एक्चुअली एजेंसी ज्वाइन करनी है, वहां पे करना है, आपको ग्रूम होना है, एंड देन आपके ग्रूमिंग सेशंस के बाद आप एक पॉलिश्ड होते हो। सो फिर मैंने थोड़ा आई स्टार्टेड पॉलिशिंग, खुद को पॉलिश किया, खुद को ट्रेन किया अच्छे से। मैंने बोला राइट पीपल, राइट नेटवर्क, राइट प्लेटफॉर्म, मैंने उसको अप्रोच किया।
मैंने खुद को ट्रेन करना स्टार्ट किया, मैंने समझना स्टार्ट किया कि मैं कैसे अप्रोच करूं. सो फॉर कपल ऑफ इयर्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इट वाज वेरी हार्ड. मैंने बहुत मेहनत की है गौरव. मतलब उस समय मुझे याद है मैं रात में भी भागती थी, मैं सुबह भी भागती थी. अर्ली मॉर्निंग शूट हो रहे हैं, फिर रात में भी आपको ऑडिशंस देने हैं. अभी क्या होता है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको ऑडिशंस नहीं देने होते हैं, राइट. बट देन इट वाज कि आपको ऑडिशंस देना है, और उसके बाद आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी नुक्स वो लोग निकाल रहे हैं, उसके बाद आपको सुनना भी है, एंड उसके बाद अप्रोच करते रहना है, फॉलो अप करते रहना है, लगे रहना है. सो या, एंड मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी. ग्लैडरेक्स वी ऑल नो, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म. ग्लैडरेक्स आई ट्राइड इन 2015, नहीं हुआ मेरा. सो बेसिकली मैं मैगजीन में फीचर होने के लिए कोशिश कर रही थी, बिकॉज इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म. इट्स आई मीन वी ऑल नो ग्लैडरेक्स. 2016 आई ट्राइड, नहीं हुआ. 2017 आई ट्राइड, नहीं हुआ. मतलब मैं हर साल अपने फोटोज, मतलब मैं फॉर्म लाती थी, फॉर्म को फिल करती थी, उसके साथ मैं अपने 3 मिडिल साइज, देन क्लोज अप एंड देन फुल लेंथ के पिक्चर्स भेजती थी. सो मुझे लगता है उनके पास बहुत सारे मेरे पिक्चर्स भी डंप हो गए होंगे. सो 2015, 16, 17 मैंने छोड़ दिया. मतलब आई वाज लाइक कि शायद मैं उनके लिए फिट नहीं हूँ. एंड सी, वो कहते हैं ना कि वो हार्डवर्क पेज ऑफ, राइट. 2019 मेरे घर पे एक मैगजीन आई, ग्लैडरेक्स के मैगजीन आई, और मैं उसमें फीचर्ड हूँ. आई जस्ट कुड नॉट बिलीव. एंड ऐसा नहीं था कि मैंने 2018 में अपने फोटोज भेजे थे, या आसपास उस मंथ में अक्टूबर मेरे पास मैगजीन आई थी, आई रिमेम्बर. मतलब मैंने 17 में ही गिव अप कर दिया था कि इट्स डन बॉस, दिस इज समथिंग, आई एम वेस्टिंग माई मनी, आई एम वेस्टिंग माई टाइम. बिकॉज आपको लाना, फिर उसको प्रॉपर भेजना, फॉलो अप करना, ईमेल्स लिखना, कॉल्स करना, पूछना, एंड फिर से डिसअपॉइंट होना कि ओ नहीं हुआ. मतलब 2 साल के ब्रेक के बाद मेरे पास मेरे घर पे आउट ऑफ नो वेयर वो मैगजीन आती है. हार्डवर्क पेज ऑफ. ये ओवर द टाइम मैंने बहुत रियलाइज किया है कि गिव अप मत करो. आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है. वो आपको टाइम पे, हो सकता है टाइम पे नहीं मिलेगा वो सक्सेस या वो फेम अगर आपको चाहिए, या फिर वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, बट इट विल कम बॉस, वो आता है. एंड 2019 वो मेरे लिए बहुत फॉर्चुनेट रहा है. एंड 2019 मैंने वो किया. इट वॉज, मतलब आई कैन से इट्स अ माइलस्टोन. इवन नाउ आई फील कि इट्स अ माइलस्टोन, जो कि मैंने सोचा नहीं था. माई रूट्स आर फ्रॉम रांची, राइट. सो कमिंग फ्रॉम रांची, आप बिलीव ही नहीं कर सकते हो कि मैं वहां से कोई शॉर्टलिस्ट होगा, इरिस्पेक्टिव और रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग और क्या चल रहा है आपके जर्नी में, राइट. सो आई कुड नॉट बिलीव. आई गॉट अ कॉल, मुझे ईमेल आए. मुझे लगा किसी ने प्रैंक किया है. एक बार जब दोबारा आया, फॉलोअप्स हुए, तो आई वाज लाइक ओ वाओ, ये एक्चुअली हुआ है. सो या, कपल ऑफ इयर्स आई कैन से बहुत डिफिकल्ट था. इश्यूज हो रहे थे, नहीं मिल रहे थे प्रोजेक्ट्स. ओनिडा के बाद असाइनमेंट्स नहीं मिल रहे थे. बट एक रैम शो किया जो कि बड़ी प्लेटफॉर्म थी, वहां से मेरे कनेक्शंस बिल्ड हुए, वहां से लोगों ने मुझे पसंद किया, वहां से लोगों ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया. तो ग्रेजुएशन डेज, आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर, आई वोंट से सेकेंड ईयर से मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, मुझे बैक टू बैक शूट्स मिलने लगे. चाहे वो डिजाइनर शूट हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट का हो, चाहे वो ज्वेलरी का हो. आपको समझना पड़ेगा कि राइट अप्रोच क्या है. प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वन, आपको खुद को तैयार करना बहुत जरूरी होता है, खुद को पॉलिश करना बहुत जरूरी होता है. गिव अप करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आई थिंक बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि वो एक कंसिस्टेंट वे में सक्सेसफुल होते हैं, या फिर हर किसी के लाइफ में वो चैलेंजेस आते हैं गौरव. नो मैटर आप क्या कर रहे हो, आप स्टार्टअप कर रहे हो या फिर आप फैशन इंडस्ट्री में हो. एंड यू नो लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज बोथ गौरव, क्योंकि मुझे दोनों को कंसिस्टेंट रखना है. तो मुझे मेरा वेंचर भी है, मैं एक स्टार्टअप प्रोफेशनल भी हूँ, बिकॉज आई नो हाउ टू सेटअप एन इंक्यूबेशन सेंटर, हाउ टू क्रिएट एन इकोसिस्टम. फिर मुझे अपना वेंचर भी देखना है, फिर मुझे अपनी मॉडलिंग भी परस्यू करनी है. सो इट्स नॉट इजी. 2 चीज मैं प्रोफेशनली कर रही हूँ. एक मेरा वेंचर है, वो अलग है. चलो, माई सिस्टर इज देयर, शी इज टेकिंग केयर, बट स्टिल आई हैव टू बी देयर, आई हैव टू सपोर्ट हर, आई हैव टू मेक श्योर दैट वो अच्छे से रन हो रहा है. तो चैलेंजेस हर चीज में होते हैं. आपका फोकस क्या है, आपको अचीव क्या करना है. एंड यू नो, ये सुनने में बहुत ईजी लगता है, बट अपनी एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बोलती. कि अगर वो 2 साल मैं बहुत डिमोटिवेट होती थी. आई यूज्ड टू फील, और बहुत कॉम्पिटिटिव
डिमोटिवेटेड फील करते हैं आप, बिकॉज आपने आपने अगर सोच लिया कि मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे शूट्स करनी है, एंड आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, यू फील वेरी डिमोटिवेटेड। आई रिमेम्बर मैं दूसरों को देख के बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी कि इनको कैसे मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं, मुझ में ऐसी क्या कमी है, या फिर आई यूज टू थिंक कि मेरे फीचर्स अच्छे नहीं है, या फिर माई स्किन टोन, बिकॉज आई एम डस्की, राइट। सो बहुत सारी चीजें आपको डीमोटिवेट करती है, बहुत सारी चीजें आपको सोचने पे मजबूर करती है। सो इट्स नॉट कि ये सुनने में ऐसा इजी लगता है कि फोकस्ड रहो, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फोकस्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट इन लाइफ। तो मैंने वो डिसाइड किया उस मोमेंट कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में रहना है। मैंने उस वक्त डिसाइड किया मैं अपने वेंचर पे गिव अप नहीं करूंगी, इसलिए मैंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया। मैंने डिसाइड किया कि मैं एचआर को छोड़ूं, मैं स्टार्टअप प्रोफेशनल बनूंगी। तो मैंने किया। ऐसा नहीं है चैलेंजेस नहीं आया, ऐसा नहीं है कि मैं वन डे मेरा नॉलेज बिल्ड हो गया और मैं एक्सपर्ट हो गई। इट्स ओवर द टाइम, वो टाइम लगता है। और सब चीज का एक ही सोल्यूशन है, टाइम दो, खुद को टाइम दो, प्लेटफॉर्म को टाइम दो, अंडरस्टैंड करो और खुद को पॉलिश करो। मैंने इसे पॉलिश करना, खुद को तैयार करो, बी वेरी वेरी प्रेजेंटेबल सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट। So now when there are hurdles, how do you motivate yourself to go forward? आई वुड से वन ऑफ द थिंग्स जो मैं हर दिन करती हूँ गौरव, मैं 15 to 20 मिनट्स खुद के साथ स्पेंड करती हूँ, भले वो रात हो, दिन हो, सुबह हो, क्योंकि वो खुद के साथ स्पेंड करना, खुद को अंडरस्टैंड करना कि क्या प्रॉब्लम चल, बिकॉज क्या होता है ना, हम डेली रूटीन में समझ नहीं पाते हैं, हम बस डिमोटिवेट होते जाते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल कल मेरे साथ कुछ हुआ एंड से फॉर एग्जाम्पल किसी मैगजीन के लिए मैंने अप्लाई किया, मेरा नहीं हुआ, तो मैं ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाऊंगी, मैं बस डिमोटिवेटेड रहूंगी एवरी सिंगल डे। तो मेरा ये कहना है कि हर दिन खुद के साथ बैठ के अंडरस्टैंड करना कि व्हाट हैपेंड, व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या लूप होल्स हैं, मैंने गलत क्या किया, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो जब आप एनालाइज करते हो ना, खुद के साथ बैठ के सोचते हो ना, बेसिकली आप बातें करते हो ना, बिलीव मी यू विल अंडरस्टैंड कि हुआ क्या, और फिर आप उस पर काम करते हो। तो वन, यस मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, ये तो मैं हूँ, मतलब बचपन से हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो वो कीड़ा था कि स्टैंड आउट, राइट, तो वो मुझे पुश करता है एवरी नाउ एंड देन। दिस इज वन। सेकंड, मैं खुद के साथ बातें करती हूँ एवरी डे, खुद को समझती हूँ क्या गलत हुआ, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या चैलेंजेस हुए और वो क्यों हुए, व्हाट वेंट रॉन्ग बेसिकली। एंड थर्ड इज कि अगर आपका फोकस क्लियर है, यू नो कि दिस इज व्हाट यू वांट, आई एम श्योर आप हर दिन अपने आप को पुश करोगे, आई एम श्योर आप हर दिन सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। आप कितने भी वो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम चैनल्स पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कोटेशंस पढ़ लो या फिर वीडियोस देख लो, इट हेल्प्स, इट वर्क्स। आई वोंट से कि इट डजंट वर्क, इट वर्क्स, बट सेल्फ मोटिवेशन नहीं है गौरव ना, तो वो चीज किसी काम का नहीं है। सो फर्स्ट सेल्फ मोटिवेशन, उसके बाद ये डिफरेंट सोर्सेज एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की मोटिवेशन का एक ज्ञान सुन लिया, या फिर कुछ अच्छे बातें सुन लिए, या फिर कुछ कोटेशन पढ़ लिया, कुछ अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स पढ़ लिया, बट सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, इट विल नॉट वर्क। सो जो भी ये डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इट वर्क्स तब जब आप फोकस्ड हो, जब आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, व्हेन यू आर रियलाइजिंग व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हेन जब आपको पता होता है कि क्या चैलेंजेस आए हुए हैं और वो क्यों है और उसको मैं ओवरकम कैसे कर सकता हूँ। सो ये मुझे बहुत हेल्प करता है। सो चाहे मैं अपनी ग्रेजुएशन डेज बताऊं, चाहे मैं अपने जहां से मैंने अपने प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया, टिल नाउ, इवन एट प्रेजेंट, एवरी डे मैं बैठती हूँ फॉर 10-15 मिनट्स, मैं खुद को एनालाइज करती हूँ, खुद को अंडरस्टैंड करती हूँ कि क्या करना है, नहीं करना है। मैं हर एक चीज की नोट्स, मैं सबको बोलती हूँ, इवन लाइक स्टूडेंट्स जिनके साथ मैं बातें करती हूँ, नोट पे लिखो, आई मीन नोट्स बनाओ, व्हाट एवर इज हियर, उसको पेन से नीचे लिखो, बिकॉज जो यहाँ है वो हम भूल भी सकते हैं, वैनिश हो सकता है, बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अभी हम खुश हैं, नेक्स्ट मोमेंट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेन, नेक्स्ट मोमेंट हम सैड हो जाते हैं। सो आई ऑलवेज मेक श्योर, जो मेरा 5th थंब रूल है कि वॉट एवर इज देयर, मैं रात के 1 बजे भी अगर कुछ मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं उसको लिखती हूँ, चाहे वो फोन के नोट्स पे लिखूं, चाहे वो पेन से लिखूं नोटपैड पे, मैं लिखती हूँ। इवन स्मॉल लिटिल थिंग्स गौरव मैं लिखती हूँ, चाहे वो मेरा डे टू डे रूटीन है, या मेरा स्टार्टअप में मुझे अचानक से स्ट्राइक किया, लेट्स डू दिस
course, मैं उसको लिखूंगी. मैं कल तक नहीं वेट करूंगी कि कल wake up in the morning and then I will write down and then I will think about it. So जो thought process है, if you think it is important, उसको लिखो, उसको अपने यहाँ पे नहीं रखो, because it's very important. because क्या है ना, जब आप पेपर पे चीजें करते हैं तो आप रियलाइज करेंगे, आप उसको आगे 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 बढ़ते बढ़ते उसको और पॉलिश करते जाएंगे, वहां से आपके और ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और आइडियाज डेवलप होंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज वन ऑफ द थंब रूल्स which I follow every day. So as you have told that aviation was the industry that you want to join in early. Now if you are given a chance to join aviation industry, would you accept it or not? I would accept. मतलब जस्ट फॉर, अगर वो लर्निंग प्रोसेस है, वन थिंग फॉर श्योर, मैं अपना करियर तो नहीं चेंज करूंगी. मैं अपना जो अभी मेरा प्रोफेशन है, आई एम अ प्रोफेशनल मॉडल, आई हैव बीन अ स्टार्टअप प्रोफेशनल फॉर ओवर 9 years, वो तो मैं नहीं चेंज करूंगी. बट येस, गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे कोई बोलता है कि 1 महीने की ट्रेनिंग है, आप आइए और हम आपको ट्रेन करेंगे, आई वुड लव टू डू दैट. आप मुझे बोल सकते हो कि मैं एक सीकर हूँ, हाँ, अगर ये कुछ है, मुझे लगता है ये मुझे सीखना है, आई गो ग्रैब इट एंड मैं अपने आप को ट्रेन करूंगी. एंड ऑफ कोर्स ये तो मेरा बचपन का ड्रीम था. सो आई ऑलवेज वांटेड टू जॉइन एविएशन इंडस्ट्री. सो डेफिनेटली यस, बट यस, नॉट एज अ प्रोफेशन बट लर्निंग प्रोसेस. So how was your experience of working with Jharkhand government? Oh, it was amazing. It was awesome, Gaurav. In fact, मैं ये बोलूंगी कि मेरे जितने नेटवर्क हैं, मेरे जितने कनेक्शंस बिल्ड हुए हैं, मेरी जितनी कॉन्फिडेंस मैंने बिल्ड किया है फॉर स्टार्टअप्स और फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप वर्ल्ड, इट इज just because of गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, द स्टार्टअप प्रोजेक्ट जहाँ पे मैं काम कर रही थी. बिकॉज अगेन यू नो, मैं एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन से आ रही थी, मैं एचआर में काम कर रही थी, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है. आपका एक ऑफिस है, आपको सुबह शाम चाय मिल रहा है, कॉफी मिल रही है, राइट? एंड यू नो SOPs डेवलप्ड हैं, आपको इंडक्शन करना है, ट्रेनिंग करना है, इंटरव्यूज करने हैं, हायर करना है, फायर करना है, एंड यू आर डन, राइट? सो जब ये स्टार्टअप थिंग, ये जो गवर्नमेंट ऑफ चीज आया, तो मैंने यही सोचा कि अभी तक वो कुक फूड मैं खा रही हूँ. सो दिस इज समथिंग, मुझे एक चांस मिला है कि मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां मैं क्रिएट कर सकती हूँ. एंड मुझे चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है, मुझे खुद को टेस्ट करना बहुत पसंद है. भले वो खादी था कि हम लोगों ने उसको ऑनलाइन किया, या वो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड था, वी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड स्क्रैच, एंड आज हमने एक इंक्यूबेशन सेंटर बिल्ड किया, हमने इतने सारे स्टार्टअप्स को ऑनबोर्ड किया. सो यार, द जर्नी वाज वेरी डिफरेंट. इट वाज डिफिकल्ट दो, क्योंकि इट्स नॉट इजी. जब आप जीरो से कुछ बिल्ड कर रहे हैं तो आपको बहुत सुनना भी पड़ता है. आपको हायर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी आपको बोलते हैं, जो स्टार्टअप्स को आप ऑनबोर्ड कर रहे हो उनके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं. तो ग्राउंड लेवल पे जो लोग होते हैं, जैसे हम ग्राउंड लेवल पे थे, एंड अगर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, जो उनके एक्सपेक्टेशंस को हम मीट नहीं कर रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल. तो हमने वो भी देखा है, हम लोगों को बहुत रिस्पॉन्सिबल भी माना जाता था, हमें ये भी बोला जाता था कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया. तो ऐसा नहीं है, हमने वहां पे भी चैलेंजेस फेस नहीं किया. हमने बहुत सारे डिफरेंट फ्रंट्स पे देखा कि हम यहाँ पे भी ब्लेम हो रहे हैं, वहां पे भी ब्लेम हो रहे हैं. बट वी रियलाइज कि जब आप खुद से कुछ करते हैं ना, इट्स रॉ, एंड जीरो से कुछ बिल्ड करते हैं ना, 1 2 3 4, सो इट विल टेक टाइम, और उसमें भी चैलेंजेस आते हैं. तो यस, माई जर्नी वॉज ब्यूटिफुल, गौरव. मैंने बहुत कुछ सीखा है. एंड आज अगर मैं यहाँ पे हूँ, मेरी जो ये नॉलेज है या एक्सपर्टीज है व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप और इंक्यूबेशन सेंटर, बिकॉज यू नो गवर्नमेंट के साथ जब आप काम करते हो तो आप उनका एक चेहरा बन जाते हो, राइट? ऑटोमेटिकली एक रिस्पेक्ट होता है. आप इनफैक्ट ड्यूरिंग माई ड्यूरेशन, आई रिमेंबर हमारे स्टेट मेंटरशिप होते थे जिसमें हमारी बहुत लर्निंग होती है. सो बेसिकली डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट स्टेट मेंटरशिप के लिए उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है. सो हमारे स्टेट मेंटरशिप बेसिकली झारखंड, इट वॉज केरला, गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड हैदराबाद. तो मैं टी-हब हैदराबाद विजिट की, एंड ये सारी चीजें हमारे गवर्नमेंट के ड्यूरेशन में हुआ है. हम गवर्नमेंट ऑफ केरला का जो केरला स्टार्टअप मिशन है, हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली टू विजिट, एंड उनके साथ हमारी ट्रेनिंग हुई, हमारी मेंटरशिप हुई. तो अगर लर्निंग एस्पेक्ट में देखूं तो बहुत हुई है. मेरा जो नॉलेज, मेरा जो रेस्पेक्ट मुझे वहां पे मिला है, वो मैं किसी से कंपेयर नहीं कर पाऊंगी. इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी इंडीड, एंड वो कभी मैं भूल नहीं सकूंगी. एंड कभी मुझे फिर से मौका मिलता है तो शायद अगर मेरे पास टाइम होगा तो आई विल अगेन गो बैक. इवन नाउ एट प्रेजेंट आई एम स्टिल कनेक्टेड विद झारखंड स्टार्टअप्स. मुझे जिस भी तरीके से उनका हेल्प करने का मौका मिलता है,
इट्स नेटवर्किंग और इट कोई कनेक्शन हो या फिर मेरे मीडिया कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग है तो उनका कवरेज करवाना होता है, सो मैं वो अभी भी करती हूँ बिकॉज यू फील वेरी इमोशनली कनेक्टेड जब आप सबके साथ डे वन से होते हो और कुछ चीजें बिल्ड करते हो। तो इट वॉज ब्यूटिफुल जर्नी इंडीड एंड वो हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रही है। अगर मैं लर्निंग एस्पेक्ट देखूं तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हुई है बिकॉज हम लोग आई थिंक एवरी वीक, आई थिंक ट्वाइस अ वीक हमारी विजिट्स होते थे। फील्ड विजिट होती थी, इंस्टीट्यूट विजिट होती थी, डिस्ट्रिक्ट विजिट होती थी, स्टेट विजिट होती थी, डिपेंड्स, दिल्ली, केरला, हैदराबाद और बैंगलोर और विद इन झारखंड, पैन झारखंड। आप जब इतने लोगों से मिलते हो, आप इतने लोगों को मोटिवेट करने जाते हो या उनके साथ ट्रेनिंग करने जाते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो। आप लोगों का एक मैनेजमेंट कैसे होता है वो सीख जाते हो। तो लर्निंग एस्पेक्ट, लर्निंग बहुत रही है। ब्यूटीफुल जर्नी इंडीड, दैट्स ऑल आई कैन से। So tell us about your venture, Royal Indian Fashion. पहले हमने इसको नाम दिया था लहंगा कुटौर। हमने एज एन बोथ मी एंड माय सिस्टर हमने 3 बिजनेस मॉडल चेंज किया एंड ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन डेज तो हमने बहुत स्मॉल स्केल से स्टार्ट किया। जैसे मैंने सोचा कि दिल्ली, बॉम्बे में हमें बहुत अच्छे जो लहंगा है या साड़ियाँ हैं, जो ब्यूटीफुल महंगी साड़ियाँ होती है वो रेंट पे अवेलेबल है, लेकिन अगर हम झारखंड जैसे प्लेस की बात करें तो वहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि जैसे मेरे खुद के फ्रेंड्स कभी कभी मुझसे जैसे उन्होंने बोला कि ये लहंगा चाहिए, तो आई रियलाइज लोग एक दिन के लिए या एक रात के लिए इतने महंगे आउटफिट्स पे स्पेंड नहीं करना पसंद करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई की शादी है तो आई डोंट थिंक कि मैं एक दिन वो 10,000 और 12,000 स्पेंड करूंगी और इवन 5,000 फॉर नो रीजन, राइट? सो दिस वाज अ प्रॉब्लम वी आइडेंटिफाइड एंड व्हाट वी डिड, हमने कुछ 15 लहंगे रेडी किए और हमने एक लहंगे पे 10 डिफरेंट साइज के ब्लाउज रेडी किए बिकॉज डिफरेंट साइज एंड और वी डिसाइडेड कि हम लहंगा को रेंट पे देंगे। सो स्टार्ट हमने किया लहंगा ऑन रेंट और हमने वो स्टार्ट किया विद, हम लोगों ने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया एंड कुछ 20-30 से हमने स्टार्ट किया एंड वो बहुत अच्छा रन कर रहा था गौरव बिकॉज हाँ, आई वोंट से कि स्ट्रक्चर्ड था। जो मैंने चैलेंज फेस किया इट वाज नॉट स्ट्रक्चर्ड, बस हमने ऐसे सोचा, हमने 15 लहंगे रेडी किए, हमने व्हाट्सएप के थ्रू वाया मैसेंजर स्टार्ट कर दिया। वी स्टार्टेड रिसीविंग ऑर्डर्स, हमारे पास कस्टमर्स आने लगे एंड हम इनफैक्ट उनका आईडी कार्ड रखते थे एंड देन हम 50% एडवांस लेते थे। सो राइट फ्रॉम 500 का लहंगा एंड वो 5,000, 2,000, 3,000, डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट कलर्स एंड ऑल, जो भी आपका साइज है आप आओ, ट्रायल लो, चेक करो और ले जाओ फॉर कपल ऑफ डेज एंड थर्ड डे यू हैव टू गेट बैक। सो we did for about 7-8 months, but क्योंकि मैंने mention किया it was not structured at all, no website, नो कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं था, बस हम वो वाया मैसेंजर वो कर रहे थे एंड हमारे कस्टमर्स भी थे। वो हमने एक शॉप लिया हुआ था, वो वहाँ पे आते थे एंड क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन डेज था, माय सिस्टर इज आल्सो वर्किंग प्रोफेशनल, सो अल्टीमेटली मेरी मॉम को देखना होता था। सो एक पॉइंट पे शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि तुम पढ़ाई कर रही हो, तुम अपने स्टडीज एंड मॉडलिंग में बिजी हो, योर सिस्टर शी इज अ वर्किंग प्रोफेशनल, सो आई एम द वन हु इज सफरिंग एंड स्पेंडिंग टाइम, क्योंकि जो भी कस्टमर्स आते थे घर पे मॉम को वो डील करना होता था और एक स्टाफ होती थी। सो देन वी रियलाइज कि इट्स नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज ये एकदम स्ट्रक्चर्ड नहीं है और ऐसे तो नहीं होगा। सो 8 months के बाद वी डिसाइडेड कि हम अपना मॉडल चेंज करते हैं एंड व्हाट वी डिड, हम लोगों ने कस्टमाइज्ड कपड़े स्टिच करना, रेडी करना शुरू कर दिया। सो हमारा एक कैटलॉग हमने डिजाइन किया था, बोथ मेरी सिस्टर और मैंने, एंड वो कैटलॉग आप देखिए, आप उसमें गाउन्स थे, उसमें लहंगे थे और उसमें साड़ियां भी थी, डिफरेंट डिजाइन एंड ऑल। आप उसको पसंद करो और हम उसको कस्टमाइज, जो भी कस्टमाइज कपड़े हैं वो बनाना शुरू किए। अगेन विद इन 6 months वी रियलाइज्ड कि ये तो बहुत चैलेंजिंग है, मतलब उसमें तो आपको इतनी गालियां पड़ती है कस्टमर्स के, बिकॉज अगर थोड़ी भी स्टिचिंग प्रॉब्लम हुई या फिर स्लीव्स कुछ और होना था, कुछ और हो गया, 1 inch का भी अगर डिफरेंस है गौरव, तो इट वॉज नॉट वर्किंग। मतलब वी रियलाइज की बिकॉज हमें ना कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था कि कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं, बिकॉज ये काम ही ऐसा है, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी, बट अगर मैं भी उनके जगह पे रहूंगी आई डू द सेम थिंग। अगर कुछ गड़बड़ हो गया और कल उनकी पार्टी है, शादी है और वो कपड़ा टेलर ने या फिर जो भी हमारा डिजाइनर है उसने खराब कर दिया,
तो वो जो गालियां पड़ती थी वो मुझे और मेरी बहन को पड़ती थी, वो ऑब्वियसली वो डिजाइनर को नहीं देंगे। हम कभी कभी बहुत डिसअपॉइंट होते थे, वी यूज टू फील बैड, वी यूज टू फील वेरी डिमोटिवेटेड, वेरी फ्रस्ट्रेट, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता था कभी कभी कि आई मीन फॉर नो रीजन, आई मीन ठीक है हम उसको ठीक करवा देंगे, बट ये ना बहुत ज्यादा होने लगा। क्योंकि बहुत डिजाइनर्स भी चेंज होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही डिजाइनर सारे कपड़े कर रहा है, तो हमारे डिफरेंट टेलर्स होते थे, तो वी रियलाइज कि इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड उसको हमने चेंज किया। सो एट प्रेजेंट द थर्ड मॉडल जो हम कर रहे हैं, इट्स अ मेकओवर स्टूडियो। सो व्हाट वी आर डूइंग, जितने भी से फॉर एग्जांपल अनुष्का शर्मा ने एक साड़ी पहनी है, वो आई एम श्योर वो आपको रियल तो नहीं मिलेगा मार्केट में एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सो व्हाट वी थॉट कि उसका रेप्लिका जो 1000, 2000 और 3000 और 4000 में आ जाए। तो वी स्टार्टेड दिस बिजनेस मॉडल कि हम जितने भी सेलिब्रिटीज के जो कपड़े होते हैं उसका रेप्लिका लाएं जो कि मार्केट में अवेलेबल है डिफरेंट रेंज पे। तो वी स्टार्टेड सोर्सिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड यू नो जो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थे वहां से हमने डिजाइनर्स को ऑनबोर्ड किया। इनफैक्ट हमने जो कपड़े अवेलेबल नहीं थे मार्केट में उसको हमने डिजाइन करवाया एंड यू नो हमारा पूरा कैटलॉग हमने रेडी किया विद वो जो भी सेलिब्रिटी ने पहना हुआ है। जैसे अगर आपको ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई अनुष्का शर्मा का लहंगा है, तो वो हम उसको डिजाइन करेंगे। दिस इज वन। इन एडिशन टू दिस जो मेरा वो टैगलाइन है द मेकओवर स्टूडियो, सो वो क्या है कि बहुत सारी लड़कियां गौरव दे आर वेरी कंफ्यूज्ड कि कपड़े तो ले लिया बट हेयर टू कैसा होगा, मेकअप कैसा होना चाहिए, ज्वेलरी क्या होनी चाहिए, कैसा लुक होना चाहिए। क्योंकि हमारा ये सेंस है, लाइक बोथ माय सिस्टर, मैंने जो भी थोड़ा सीखा है अपनी सिस्टर से सीखा है, वी डिसाइडेड कि हम उनको ये एडवाइस भी देंगे। बेसिकली इट्स गोइंग टू बी अ प्लेटफॉर्म, यू लैंड अप हियर, आप एक आउटफिट सेलेक्ट करते हो। हमारे डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट भी हमने ऑनबोर्ड किया हुआ है, तो अगर आपको मेकअप आर्टिस्ट चाहिए तो हम उसका कनेक्शन भी आपको शेयर करते हैं। सेकेंड, हम आपको बताते हैं कि इस पर्टिकुलर आउटफिट पे कैसा हेयर जाएगा, आपका लुक कैसा जस्टिफाई होगा, क्या ज्वेलरी होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास ज्वेलरीज भी होती है। तो अगर जो ज्वेलरी अगर उनको लगता है कि ये लेना चाहिए वो हमारे पास से ले सकते हैं, बट फिर भी हम एडवाइस देंगे कि अगर आपको बाहर से भी लेना है तो आप ये पर्टिकुलर ज्वेलरी लो, ये कलर लो, ऐसा स्टाइल होना चाहिए एंड यू नो क्या कैसा मेकअप होना चाहिए, लाउड होना चाहिए, सोबर होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। सो यू नो कंप्लीट मेकओवर। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एट प्रेजेंट एंड फॉर्चुनेटली थोड़ा ठीक चल रहा है। So tell us about your roles and responsibility as CEO entrepreneurship at Javier School of Management. I landed here and along with me Professor Rajiv is there. इस प्रोजेक्ट पे हमने day one से बहुत closely काम किया है। Like even with Excel, if you see right from building, you know, networks, जब मैं आई तो like zero network था, network as in partners. At present we have 30 plus partners including Razorpay, Microsoft, you know, TIE, Zoho, AWS. So ये सारे partners, तो right from building networks, right from onboarding partners, getting the MOU done, right from you know program कैसा होना चाहिए, कैसा brochure होना चाहिए, you know program structure कैसा होना चाहिए, कोर्स करिकुलम कैसा होना चाहिए, कोर्स आउटलाइन कैसा होना चाहिए, यू नो कैसे वर्कशॉप्स होने चाहिए, कैसे सेमिनार्स होने चाहिए, कैसे सेशंस होने चाहिए, ये सारी चीजें हमने फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड किया एंड आई थिंक विद इन 6 months हम लोग यू नो रेडी टू गो थे एंड 2022 वी लॉन्च द प्रोग्राम। तो यस, इफ यू सी माई रोल, तो अगेन जब आप बिल्ड करते हो चीजों को फ्रॉम जीरो, फ्रॉम स्क्रैच, तो आप हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो गौरव, राइट? Whether it is me or Professor Rajiv, you know, we are responsible for the entire thing. We are responsible for the batch. We are responsible for those students, you know, those who have enrolled for this program. We are responsible for our partners. We are responsible for different stakeholders. We are responsible for organizing events. We are responsible for, you know, organizing partner sessions. We are responsible for course curriculum, course outline, course structure, the brochure, the landing page, everything. So if you see the, you know, like, and especially I don't teach, so Professor Rajiv, he's the one who teaches entrepreneurship. So like entrepreneurship is all about, अगर मैं बोलूँ तो उसमें 35% academic होता है, non academic ज़्यादा होता है, right? Like when I say non academic, partner credits, knowledge sharing platform, you know, attending events, then जो partner events होते हैं, then sessions में जाना, networking करना, then different, you know, जो हमारे products हैं उनका सेशंस करना। तो ये सारी चीजें, इन सब के लिए मैं अकाउंटेबल हूँ एंड जितने भी ये पार्टनर्स ऑनबोर्ड हुए हैं, यू नो, राइट फ्रॉम
creating the platform, identifying the right network, and उनको onboard करना, getting the MOU done, मतलब I won't say one meeting, but कुछ partners के साथ तो हमारे 10-12 meetings हुए हैं और then MOU हुई है. So this entire thing, तो वही बात है जब आप responsible होते हो and build करते हो चीजों को from zero, from scratch. Basically, I'm responsible and Professor Rajiv, we are responsible for overall functioning of PGDM-IB and the entrepreneurship department. I head entrepreneurship department and Professor Rajiv is the Dean Academics. So he teaches entrepreneurship. So हम दोनों इस program को launch किए in the year 2022 and we have 2 batches. Second batch we launched अभी जुलाई में हमने उसको launch किया. तो yeah, if you talk about my responsibilities, overall I'm responsible for PGDM-IB, the ecosystem, the relationships with partners, then every now and then investors को onboard करना, then demo days अभी हमारे plan होंगे, we will organize. Then अभी हमारा second year हमें कैसे structure करना है, जैसे first it's a 2-year it's an AICTE approved program, Gaurav. It's a 2-year full time MBA. This is MBA in entrepreneurship. So first year structure हो गया, so अब second year को कैसे structure करना है, तो yeah, responsible for overall management when it comes to entrepreneurship. What do you think? What is the role of technology in an entrepreneurship life? It's very important, Gaurav, because at present, especially इस era में और say 21st century में और especially ये जो present environment है जो बहुत competitive है, जहाँ पे competitions इतने different level पे हैं, अगर अभी जैसे मैंने अपना model change किया because I felt कि no boss, अगर मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो ये लोग कहीं और चले जाएंगे, right? तो competition इतने ज्यादा है, चाहे वो food industry हो, चाहे वो agriculture इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी IT सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो नॉलेज होना चाहिए. अगर जैसे अभी हमारा भी वेबसाइट वो डेवलप हो रहा है, लाइक माई वेंचर, अभी वो पूरी तरह से अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, तो क्योंकि हम कभी कभी लैक करते हैं. अगर आप मेरी बात करो तो आई एम नॉट समबडी हु इज एक्सपर्ट हु नोज एवरीथिंग, बिकॉज माई डोमेन इज फैशन. तो मैं कपड़े समझती हूँ, फैब्रिक समझती हूँ, मैं फैशन सेंस समझती हूँ, मैं मेकओवर समझती हूँ, मेकअप समझती हूँ. बट इफ यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, बेसिक, यस आई डू अंडरस्टैंड, बेसिक नॉलेज है, बट एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप स्पेशली स्टार्टअप फील्ड में हो, यू आर डूइंग समथिंग, तो इफ अगर आपका पार्टनर या फिर आपका को फाउंडर और द फाउंडर ही और शी डजंट नो, मेक श्योर आपका कोई टीम मेंबर हो जो आपको एवरी नाउ एंड देन वो नॉलेज शेयरिंग वाला काम कर रहा है व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी और हिज एक्सपर्टीज अराउंड दिस. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So how difficult was it to create a pool of 100 mentors? Oh, whether it is creating a pool of mentors or it is onboarding different stakeholders or onboarding investors or onboarding partners, it is another level वो task है. I did tell you कि हमारे कुछ ऐसे partners हैं जिनके साथ हमारी 12 meetings हुए हैं तब वो MOU हुई है, right? Because हर meeting में you have to justify why आप उनको pitch कर रहे हो, why PGDM-IB, why Excel, why Exceed. आपको उनको justify करना है कि why do you want to onboard them? आपको अपने स्टार्टअप्स के लिए उनका नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म क्यों लेना है. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज क्या होता है कि एंड स्पेशली कमिंग टू मेंटरशिप, क्रिएटिंग अ पूल ऑफ मेंटरशिप. तो अभी क्या होता है कि हमारा डिफरेंट सेक्टर्स होता है, गौरव. फॉर एग्जाम्पल, वी आर नॉट सेक्टर फोकस्ड कि आपको एग्रीकल्चर या फूड में ही करना है. वी आर सेक्टर एग्नोस्टिक. व्हेन सेक्टर एग्नोस्टिक है कि आप किसी भी सेक्टर में काम करो, वेदर इट इज एग्रीकल्चर, फिनटेक, IT, ऑटोमोबाइल और फूड इंडस्ट्री. उस केस में क्या होता है, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, उनके मेंटर मेंटी हैंड होल्ड का और मेंटर मेंटी मैपिंग का. तो अगर से फॉर एग्जाम्पल मेरा फैशन है, माई डोमेन एरिया और माई वेंचर, तो मुझे मेरा मेंटर भी फैशन से रिलेटेड चाहिए या कोई ई-कॉम से रिलेटेड, जो मुझे वो ई-कॉम पे हेल्प कर पाए, जो मुझे समझा पाए कि वो ऑनलाइन ई-कॉम प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है. तो आई नो दिस फैशन थिंग, आई नो दिस ई-कॉम थिंग, बट इन एडिशन टू दिस या फिर इसके बियॉन्ड अगर मैं जाऊं तो आई वोंट से कि मेरा फिनटेक या फिर ब्लॉकचेन पे मेरी एक्सपर्टीज है. अगर मैं उस पर कुछ कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा वेंचर इट मूव्स अराउंड ब्लॉकचेन, तो मुझे वो मेंटर बहुत जरूरी है. तो राइट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द करेक्ट मेंटर एंड उसका सेक्टर, कोशिश करना कि उसको वो एंटरप्रेन्योरशिप का फ्लेवर हो उनके पास. बिकॉज अगर मैं किसी के मेंटर हूँ और मेरा वो इकोसिस्टम एक्सपर्टीज नहीं है, मेरा वो नॉलेज नहीं है,
तो शायद मैं ये एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड को नहीं समझ पाऊंगी, शायद मैं उसके पेन को नहीं समझ पाऊंगी. सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच वी डू, वी आर ट्राइंग टू लोकेट मेंटर्स एंड आइडेंटिफाई मेंटर्स जिनका एक्सपीरियंस है इकोसिस्टम में, जिनको दोज हु नो यू नो कि ये पेन क्या होता है, व्हाट आर द लूप होल्स, व्हाट आर द चैलेंजेस, सो दैट तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम जिस डोमेन में स्टार्टअप है उसी डोमेन को मेंटर को मैप करें. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड यू विल अंडरस्टैंड आइडेंटिफाइंग द राइट मेंटर, देन इकोसिस्टम का मेंटर, देन कनेक्शन बिल्ड करना, देन मीटिंग्स शेड्यूल करना, एंड देन मेकिंग श्योर कि इट इज हैपनिंग एंड क्रिएटिंग और उसको सस्टेन करना. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ऑनबोर्ड कर लिया और आप भूल गए. सो ऑनबोर्डिंग इज वन थिंग एंड उसको सस्टेन करना या उनके साथ टाइम टू टाइम रिलेशनशिप बिल्ड करना एंड एंगेजमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी को ऑनबोर्ड किया और अगर इफ हमने एमओयू साइन किया, वो एक अलग टास्क था, वो एक इंपॉर्टेंट चीज थी, बट अगर उनके साथ कोई एंगेजमेंट नहीं है, हमारा स्टूडेंट इंटरफेस नहीं है, देन इट इज ऑफ नो यूज. सो यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट अगर कोई मेंटर आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो उनका टास्क क्या होगा, उनकी डिलीवरी क्या होगी और उनका engagement कैसा होगा with the respective start. So yeah, it is very difficult, Gaurav, to identify the right mentor, फिर उनको मैप करना राइट स्टार्टअप के साथ, फिर मेकिंग श्योर कि वो जेल हो रहे हैं, एंड देन बिकॉज इन सब चीजों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, राइट? दे आर लाइक मेंटर भी वेट करेगा फॉर स्टार्टअप, स्टार्टअप वेट करेगा फॉर मेंटर, बट उनका जो इंटरफेस है उसके बीच हम होते हैं. तो हमारा टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट एज वेल. So who is your mentor? Yeah, my inspiration is my sister, जिनसे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ और जिनसे मैं हर दिन सीखती हूँ, वो मेरे पेरेंट्स हैं, एंड स्पेशली माय फादर. जब मैं उनको देखती हूँ, उनका जो पैशन है, लाइक एवरी डे गेटिंग अप, और वो रियाज जो बोलते हैं, वो हर दिन सुबह 1 घंटे 5 से 6 रियाज करते हैं और फिर शाम को उनके क्लासेस होते हैं, और मैं बहुत मिसमराइज होती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि बॉस, मेरी तो बहुत उम्र पड़ी है टू डू थिंग्स एंड मेक श्योर कि मैं और चीजों में एडिशन लाऊं, वैल्यू ऐड करूं अपने लाइफ में, अपने लाइफ को और स्किल्स ऐड करूं. तो या माय फादर इज, जब भी मैं उनको देखती हूँ, आई फील वेरी मोटिवेटेड. सो ही इज डेफिनेटली वन ऑफ माय मेंटर्स. आई वोंट से ही इज द मेंटर, बट यस, ही इज वन ऑफ माय मेंटर्स बिकॉज बिलीव मी गौरव, व्हेनेवर आई एम डाउन, आई एम फीलिंग लो, फॉर एग्जाम्पल इट इज वन ऑफ दोज डेज जब आप बहुत लो फील करते हो, सो आई विल कॉल अप माय फादर, एंड उनकी संस्कृत की नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है? तो मतलब वो मुझे जैसे भगवत गीता है वहां से कुछ बताएंगे, देन वो मुझे हर दिन फाइट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं. उनको मैंने नेगेटिव बोलते हुए, नेगेटिव मैंने सुना ही नहीं है, वो नेगेटिव होते ही नहीं है. मतलब आप उनको जाकर कुछ सुना भी दोगे, ही वोंट रेसिप्रोकेट इन द सेम मैनर, ही विल नॉट रेस्पॉन्ड. तो मैं अगर डिमोटिवेटेड हूँ, इफ आई एम फीलिंग लो, यू नो, एंड इट इज वन ऑफ दोज डेज, आई विल कॉल अप माई फादर, मैं पूछूंगी मुझे क्या करना चाहिए. सो येस, ही इज डेफिनेटली माई इंस्पिरेशन अलॉन्ग विथ माई सिस्टर. So what's that one thing you love about your journey and profession the most? I was featured in Vogue. मेरे लिए वो दिन मैं भूल नहीं पाऊंगी बिकॉज आई वॉज इन केरला, आई रिमेम्बर, एंड आई लैंडेड, मैं रांची एयरपोर्ट पे आई, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट मीडिया की, रचना आपका इंटरव्यू करना है. आई रिमेम्बर माई फर्स्ट इंटरव्यू वॉज विद पायनियर, देन टेलीग्राफ, देन दैनिक भास्कर. एकदम से सडन कॉल्स मिल रहे हैं एंड देन दे आर टेक्सटिंग मी, एंड ये होना, तो वो मोमेंट मैं भूल नहीं पाती हूँ. जैसे अभी जब कोई मीडिया कवरेज होता है तो वो इतना स्पेशल फील नहीं होता है जो वो उस वक्त हुआ था, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम कि मेरा कवरेज हो रहा था एंड मेरे इंटरव्यूज हो रहे थे. सो या दैट मोमेंट वॉज वेरी स्पेशल गौरव. एंड मैं रांची से हूँ तो पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी वोग गर्ल, एंड बिकॉज यू कम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी एंड यू डोंट रियलाइज समथिंग लाइक दिस विल हैपन. एंड स्पेशली फ्रॉम ईस्ट इंडिया की बात करें तो अ गर्ल फ्रॉम ईस्ट झारखंड साइड और रांची, एंड वो वोग में फीचर हुई, एंड स्पेशली जहाँ पे इतने प्रोफाइल्स हैं मॉडल्स के, एंड शी गॉट शॉर्टलिस्टेड. So it was a big moment for me. I started getting calls. In fact, बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए मेरा स्टेटस लगाया, मेरे लिए लिखा. तो ये सारे डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट लोगों से इतने ये मैसेजेस मिल रहे थे ना, इतनी आई वॉज ओवरवेल्म्ड, यू नो, इमोशंस, एंड बहुत बहुत अप्रिसिएशन हुआ था. सो दैट मोमेंट इन माई लाइफ, इट्स अनफॉरगेटेबल, इट वॉज ब्यूटिफुल इन डीड, एंड मैं वो कभी नहीं भूल पाऊंगी. सो येस, वोग एंड ग्लैडरस ऑफ कोर्स, बिकॉज जो चीज आप 3 साल से कोशिश कर रहे हो वो 5वें साल में आपके डोर पे आता है. तो इट वॉज, आई वॉज लाइक एक्चुअली जंपिंग, मतलब मैं
जंप कर रही थी कि ओ वाओ ये कैसे हो गया। एंड लाइक सितंबर वाज वोग एंड देन अक्टूबर वाज ग्लैड्रेक्स। तो मैं वोग से निकली नहीं थी, वो फीलिंग एंड यू नो स्पेशल मोमेंट चल रहा था एंड देन दिस ग्लैड्रेक्स थिंग हैपेंड। कमिंग टू फैशन थिंग, या डेफिनेटली माय वोग इट मतलब बहुत स्पेशल मोमेंट रहा है मेरे लिए। एंड इसके अलावा भी मैं कुछ लोगों से कनेक्टेड हूँ जहाँ पे मैं जब भी मुझे मौका मिलता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैम यू नो बताओ कैसे ग्रूम होना है या क्या रास्ता चुनूं, तो यू नो वो एडवाइस देना आई फील वेरी स्पेशल कि आपको कोई उस लायक समझ रहा है कि आपसे वो एडवाइस ले रहा है अपने करियर को लेकर। बट अगेन यू नो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, द ड्यूरेशन, द जर्नी, द challenges, the experience is so different, Gaurav. It's unforgettable and as I mentioned कि it's beautiful indeed. वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। You get to meet those officials जो secretaries हैं या chief secretary हैं, and आप उनको रिपोर्ट करते हो, आप उनसे you know मीटिंग करते हो, आप उनको बताते हो, and then you are responsible for state, right? And you are representing your state. तो वो फीलिंग बहुत डिफरेंट है, like you know working with an institution and representing your state, the feeling is very different. So हम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर हम स्टार्टअप इंडिया के साथ काम कर रहे थे तो हम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर मैं केरला गई तो मैं स्टेट रिप्रेजेंट कर रही थी, आई वाज अ फेस। अगर मैं हैदराबाद गई तो वी वर रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ झारखंड आईटी डिपार्टमेंट स्टार्टअप प्रोजेक्ट। तो द फीलिंग इज वेरी डिफरेंट एंड द जर्नी वाज ब्यूटीफुल एंड मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सो या गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। What advice would you like to give to young males and females who want to join modeling as their career? Yeah, so first I would like to make it very clear, खुद को पहले पॉलिश करो, खुद को तैयार करो। एंड देयर आर टू वेज। एक जो मैंने किया, मैंने एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया एंड वहां से मेरे कनेक्शंस बिल्ड हुए। मेरा बैकग्राउंड वैसा है, मेरी सिस्टर शी अंडरस्टैंड्स यू नो फैशन, मेरे पास वो बैकग्राउंड था जो मुझे ट्रेन कर सके, जो मुझे बता सके यू डोंट हैव टू गो देयर, यू हैव टू चूज दिस, यू हैव टू चूज यू नो लाइक। तो मेरा कहीं ना कहीं वो मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो सराउंडिंग था वो मेरा काफी सपोर्टिव था। सेकेंड रास्ता होता है एजेंसी ज्वाइन करो, बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी एजेंसी होनी चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो बनवाओ, ठीक है, बट जैसे बहुत लोग क्या करते हैं पोर्टफोलियो बना लेते हैं, स्पेंड करते हैं, बट दे रियली डोंट नो वेयर टू स्टैंड, राइट? दे आर लाइक ब्लैंक नाउ। सो यू बेटर यू नो ज्वाइन करो एजेंसी जहाँ पे आपको राइट प्लेटफॉर्म मिलेगा, राइट मेंटर्स मिलेंगे, राइट नेटवर्क मिलेगा। तो यस, वन इज डेफिनेटली खुद को पॉलिश करो। अब वो कैसे करते हो, कैसे ग्रूम करते हो, मेक योर सेल्फ वेरी वेरी प्रेजेंटेबल, बी प्रेजेंटेबल, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप कहीं भी हैं कुणाल, इफ यू आर स्टेपिंग आउट, मतलब हमारे मॉडलिंग डेज में हमें ये सिखाया गया है कि अगर आप अपने रूम से बाहर निकलते हैं तो आप जाने जाते हैं एज अ मॉडल। तो आप जानो आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करो। तो वो चीजें हमारे दिमाग में हमेशा रही कि अगर हम अपने एक कैजुअल 5 मिनट की भी मीटिंग के लिए हम जा रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर प्रेजेंटेबल, बिकॉज वहां से ना आप कॉन्फिडेंट होते हो एंड यू फील दैट यू आर लुकिंग गुड। सो वन, लुक गुड, बी प्रेजेंटेबल, खुद को पॉलिश करो, खुद को ग्रूम करो। आई मेंशन कि जब 2014 आई मीन बैक देन अगर मैं देखूं तो इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, इतने रिसोर्सेज नहीं थे। हम लोगों ने एक्चुअली बहुत हार्ड वर्क किया है कनेक्शंस बिल्ड करने में, प्रोजेक्ट्स लेने में, असाइनमेंट्स लेने में, क्योंकि हमारे अंदर एक कॉम्पिटिशन होता था गौरव की वहां पे 10 प्रोफाइल्स हैं, मेरा वहां जाएगा या नहीं। एंड अभी तो वैसा नहीं है, अभी तो आप एजेंसी ज्वाइन कर सकते हो, अभी तो आपके प्लेटफॉर्म से आप वहां से ग्रूम हो सकते हो, यू कैन मेक योर सेल्फ प्रेजेंटेबल। इंस्टाग्राम इज देयर, वहां पे तो इतने सारे मॉडल्स हैं, इनफैक्ट बहुत सारे अपने सेशंस उस पे अपलोड करते हैं। तो राइट प्लेटफॉर्म, राइट नेटवर्क, concerned person, right people, right mentorship, right mentors, it's very important. And self motivation, push yourself. अगर आप अच्छे पॉजिटिव कोट्स पढ़ लो, आप पॉजिटिव वीडियोस देख लो, but in case if you are not self motivated, nothing is going to work. So make sure you're self motivated, make sure you're doing something, you know what you have to do, you know what you have to achieve, you have to understand this is what I want. तो जब वो आप समझोगे ना तो आप, and focused, be very very focused. So whether it is startup or modeling, make sure you have right people around, make sure you have right mentors around, make sure the platform is there, right platform, make sure you have resources. So these things are very important, and एक बार आप वो kick start करते हैं then you are there, nothing is going to stop. So what are do's and don'ts which they should remember? Do's तो definitely कि right network, right platform, it's very very important. Self motivation is important. मैं students को भी बोलती हूँ कि self motivated रहो,
फॉरगेट अबाउट कौन तुम्हें मोटिवेट करता है। यस, माई फादर, माई सिस्टर, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, मेरे लिए वो इंस्पिरेशन है। बट अगर मैं ही डाउन हूँ, मैं ही खुद को मोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, मैं ही पॉजिटिव फील नहीं करना चाहती हूँ, डू यू रियली थिंक इट इज गोइंग टू वर्क? नो, इट डजंट वर्क। सो मेक श्योर आपका जो इनर वॉइस है वो निकल के आ रहा है। खुद से बातें करो, 5 मिनट बात करो। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए वो साउंड करेगा कि बहुत अजीब लग रहा है। नो, बट इट वर्क्स। मेरे लिए तो काफी वर्क किया है। मैं हर दिन बात करती हूँ खुद से, एनालाइज करती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, what went wrong, what are the challenges I'm facing, how to overcome those challenges. So it's very important. Don'ts for especially for fashion industry, ये शूट के लिए आपको ये करना पड़ेगा, इतने पैसे देने पड़ेंगे तब आपको ये शूट मिलेगा। नहीं, प्लीज डोंट डू दैट। आपको मैंने बोला देयर आर 2 ways। या तो अगर आपका सराउंडिंग ऐसा है, आपका बैकग्राउंड ऐसा है, अगर आपके पास वैसे लोग हैं, आप उनके साथ ट्रेन करो खुद को, पॉलिश करो खुद को, ग्रूम करो खुद को। इफ यू थिंक कि तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है टू स्पेंड समवेयर, दिस इज समथिंग आई फील, आई बिलीव कि अगर डेडिकेशन से किया जाए तो हो सकता है। एंड ट्राई टू फाइंड द कनेक्शंस। जैसे इंस्टाग्राम पे अपने फोटोज अपलोड करो, देयर आर बहुत सारे शूट्स के और मॉडलिंग के बहुत बार कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आते हैं, उसको ग्रैब करो। पैसे देकर शूट करना, पैसे देकर कुछ करना, आई डोंट थिंक। अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, अपना फेस को रिप्रेजेंट करवा रहे हो, तो मेक श्योर उसका एक वैल्यू है। आई डोंट थिंक, बहुत सारे ऐसे छोटे शहरों में होता है गौरव की उनको बोला जाता है कि आप इतने पैसे दो, आपको ये शूट करवाएंगे, आप उतने पैसे दो, आपका ये करा देंगे। यस, पोर्टफोलियो के लिए पैसे दो, उसमें आपका हार्डवर्क जाता है, उसमें दूसरे का भी हार्डवर्क होता है, वो एक कमर्शियल पार्ट है। बट कोशिश करना कि एक वो गुमराह वाले रास्ते पे मत जाओ। देर आर वेज, देर आर प्लेटफॉर्म्स जहां पे आप जाओ, सही लोगों को अप्रोच करो। अगर कोई आपको ये बोलता है कि आपको वो मॉडल बना देगा या फिर बिकॉज मैंने खुद के फ्रेंड्स के साथ ही एक्सपीरियंस किया है एंड आई स्टिल रिमेम्बर इट वॉज 2015। ऐसा कुछ हुआ था कि कुछ फोटोज मांगे गए थे एंड देन उसको मिसयूज किया गया। तो मेक श्योर कि आप कहीं भी अपने फोटोज नहीं भेज रहे हैं। मेक श्योर कि आप अगर फोटोज भेज रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड चेक करें। मेक श्योर कि आपके पास आप प्रॉपर वो ऑथेंटिकेशन जो है वो सब चीजें चेक करें कि वो सही प्लेटफॉर्म है, सही इंसान है। तो ये सब चीजें बहुत होती है गौरव। इवन नाउ, आई मीन नो मैटर हम कितना बोले, आप कितना बोले, तो अगर मेरा मैसेज होगा डोंट्स में तो यही होगा कि प्लीज मेक श्योर कि वो बैकग्राउंड रीचेक जरूर आप करें। कहीं भी अपने फोटोज ना भेजें, अगर भेज रहे हैं तो सोच समझ के भेजें। बहुत ऐसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे ग्लैडरेक्स है। अगर आपको कुछ बनना है तो ग्लैडरेक्स के लिए आप अप्लाई करें, है ना। वहां पे ऐसा वो कॉम्पिटिशन नहीं है कि वो हाइट एंड एवरीथिंग, वहां पे एक स्टैंडर्ड उनके क्राइटेरिया होता है, आप वहां पे अप्लाई करो। तो देयर आर वेज। आपको कहीं भी फोटो भेजने की या फिर पैसे देने की जरूरत नहीं है। सोच समझ के कीजिए। अगर पैसे दे रहे हैं तो मेक श्योर प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करके दे रहे हैं। सो ये क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स जो थोड़े गड़बड़ हो गए जिनके साथ, तो आई मेक श्योर कि मेरा ये मैसेज जाए उनके पास। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या एडवाइस रहेगी? टू सम एक्सटेंट व्हाट जो अभी मैंने मेंशन भी किया कि इट्स अ लोनली पाथ गौरव। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, यू एक्चुअली फील, मतलब मैं भी फील की हूँ, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है एंड आपको बहुत सारे स्लैप्स मिलेंगे। व्हेन आई से स्लैप्स, वो मेंटली मैं बोल रही हूँ। यू विल गेट 100 स्लैप्स अ मंथ, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो मेंटर हो, चाहे वो कस्टमर नहीं मिला या कस्टमर दे आर नॉट सेटिस्फाइड, उनसे गालियां पड़ रही है, या फिर प्रोडक्ट अच्छा नहीं काम कर रहा है, एक महीने में 100 सेल किया, नेक्स्ट मंथ आपने 20 भी सेल नहीं किया। तो ये सब चीजें रेडी रखो, कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि ये होंगे, इट्स अ लोनली पाथ, अप्स एंड डाउन्स होंगे। बी वेरी वेरी फोकस्ड, डिसाइड व्हाट यू वांट, डिस्कस करो फाउंडर। मतलब ये मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ को फाउंडर, बिकॉज क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको एक हेल्पिंग हैंड मिलता है, आपके थॉट प्रोसेस में एक वैल्यू एडिशन होता है, यू गेट टू नो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डायनेमिक्स चेंज होते हैं। तो गुड टू हैव अ को फाउंडर। तो अगर आपको लगता है कि आपको एक को फाउंडर रखना चाहिए, आप उनके साथ बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। अगर कभी आपको लो लगे तो आप उनके साथ ब्रेनस्टॉर्म करो, बातें करो, डिस्कस करो। तो बट कीप दिस थिंग्स इन माइंड कि अप्स एंड डाउन्स होंगे, लो फील होगा, डिमोटिवेशन आएगा, बुरा लगेगा, गिव अप करने का एक बार नहीं 100 टाइम्स मन करेगा। बट मेक श्योर यू आर नॉट गिविंग अप, मेक श्योर व्हाट यू हैव डिसाइडेड यू हैव डिसाइडेड, मेक श्योर दैट ये सेल्फ कमिटमेंट करो कि मैंने ये किया है और ये मैं करूंगी। तो वो सेल्फ कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद के साथ कमिटमेंट करो कि मुझे ये करना है, ठीक है। टाइम लगेगा। आपने सोचा मैं 2 साल में इन्वेस्ट करूंगा, सॉरी मैंने 2 साल इन्वेस्ट करूंगा, थर्ड मेरे पास रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। इवन इफ यू आर नॉट रेवेन्यू
पॉजिटिव। टाइम दो, हर चीज को टाइम दो। आपने 3 साल सोचा, हो सकता है 6 साल लग जाए, हो सकता है 7 years, राइट? बट सेल्फ कमिटमेंट, फोकस, डिसाइड करो कि ये मैंने, इफ आई हैव डिसाइडेड दिस इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड, आई हैव टू डू दिस। तो या इट्स अ लोनली पाथ। कीप थिंग्स इन माइंड। हडल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, प्रॉब्लम होगी, अप्स एंड डाउन्स होंगे, कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, चीजें नहीं होंगी, टीम वर्क शायद नहीं करेगा। ऐसा भी होता है। मेरे कुछ स्टार्टअप्स हैं फ्रॉम झारखंड, तो दे वर लाइक कि मार्केटिंग अच्छी नहीं हो रही है, टीम में वो पैशन नहीं है, टीम अच्छे से नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें होंगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये होंगी। आपका ड्रीम है, ये आपके टीम की ड्रीम नहीं है। सो रियलाइज एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू कि इट इज योर ड्रीम, इट इज नॉट देयर ड्रीम। तो टू मेक देम वर्क, टू मेक देम अंडरस्टैंड, यू हैव टू सिट विद देम, यू हैव टू टॉक टू देम व्हाट इज बॉदरिंग देम। तो एवरी टाइम यू हैव टू रियलाइज एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं इसको ओवरकम कैसे करूं, इस पे काम कैसे करूं। तो ये सारी चीजें होंगी, वेदर इट्स अ टीम वर्क, वेदर इट इज योर टीम मेंबर। मतलब बहुत ऐसा मैं सुनती हूँ कि टीम मेंबर इज नॉट पैशनेट, ही और शी इज नॉट विलिंग टू डू। तो ये सब चीजें तो होंगी गौरव। यू हैव टू बी फोकस्ड, सेल्फ कमिटमेंट इज इंपॉर्टेंट। बिलीव करो खुद पे, सच में बिलीव करो। मैं अपनी एक्सपीरियंस से ये बात बोल रही हूँ। बिलीव एंड डू व्हाट यू वांट टू डू, एंड आई एम श्योर you will achieve. So, and best wishes. So now we'll start our rapid round. Okay. So if you need to choose one from modeling and startup, what would be that? Startup. Success in one line. Success when you have achieved your goal. So if you need to choose any one to achieve success, which is luck, hard work and smart work, what would that be? Definitely smart work. Your favorite destination? Rishikesh. Your favorite actor and actress? Actress Madhubala ji. Actor I would say Vidyut Jamwal. Vidyut. Your favorite startup? My favorite startup. Difficult one, but I would say Suta. Your favorite color? Black. So at last, one line that defines you. Rachna is very passionate. Rachna is self-motivated. Rachna is someone who stands out. So thank you very much for your time and sharing your experience, advices, your journey on our show. Thank you very much. Thank you so much, Gaurav, for your time, and it was wonderful talking to you. Thank you. And I must say you guys are doing amazing, great job, because knowledge sharing platform, मतलब as I mentioned कि then if I look back and I see तो इतनी चीजें नहीं होती थी. So what you are doing is commendable, Gaurav. Hats off to you guys and my good luck and best wishes. Thank you once again.